in previous lecture we have studied about the methods of preparation of alkenes, right? अब इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अब आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स में हम दो तरह के प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके, कलर, ओडर, ठीक है। That physical parameters we see in the physical properties, okay. So first of all we will study about the physical properties of alkanes and then we will move to the chemical properties, that is how these alkanes they react with other substances, ठीक है। So write down the heading first, physical properties of alkanes, okay. Write down heading physical properties of alkanes. Physical properties of alkanes. Now what are the physical properties of alkanes, that we will see. First we will see about the polarity. Now in alkane we know that alkane is a compound of carbon and hydrogen, so it's a hydrocarbon. अब देखो एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं यहाँ पे CH4, तो CH4 में 4CH बॉन्ड है, ठीक है। Now this molecule is a non-polar molecule. It is called non-polar molecule. So all hydrocarbons, alkanes, they are non-polar. Now why they are non-polar? आपको पता है अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया होता CH3Cl. Cl is more electronegative, so it withdraws electron density towards it, and hence it takes partial negative charge. So the carbon acquires partial positive charge. That we have seen. So this bond is a polar bond. So the molecule is polar one. Okay. अगर बॉन्ड में देखो बॉन्ड अगर पोलर है तो हम मॉलिक्यूल को भी क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल. If the bond becomes polar, right? If there is a shifting of electron pair towards any one of the element, okay, then that bond becomes polar. But here carbon and hydrogen they possess near about same electronegativity. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है और इसलिए ये जो बॉन्ड है दैट रिमेन्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके। सो द बॉन्ड बिकम्स नॉन पोलर. इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ओके। सो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन द बॉन्ड इज नॉन पोलर, हेंस द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. सो alkanes are non polar, okay. So write down here, due to less electronegativity, we can write here between carbon and hydrogen. Due to less electronegativity between carbon and hydrogen, due to less electronegativity difference, we can say, due to less electronegativity difference between carbon and hydrogen, C-H bond in alkanes is non-polar, okay, is non-polar. Hence alkanes are non-polar molecule. Alkanes are non-polar molecules. Okay, note down this point. Due to less electronegativity difference between carbon and hydrogen, the bond is non-polar. Thus, alkanes are non-polar. Okay, तो ये हो गया पोलैरिटी. और बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन में जो है सिंगल बॉन्ड, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड, इट इज नॉन पोलर एंड हेंस अल्केन्स आर आल्सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो समझो, अब मेरे पास है अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स. अब देखो हमने गैस लिया तो गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मीथेन गैस लिया, इथेन गैस लिया, प्रोपेन, ब्यूटेन. सो फर्स्ट 4 अल्केन्स दे आर इन गैसियस स्टेट, ओके। तो समझो अगर मैंने ये मॉलिक्यूल्स लिए CH4 1 मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल,
third molecule, fourth molecule and so on. Okay, so the force of attraction between them is very weak. Okay, देखो ये molecule stable है and in addition to that they are non-polar, so they will not attract another molecule very tightly. ठीक है, अब ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो उनमें उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता, वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है. दैट इज दैट इंटरेक्शन और यू कैन से दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्स. ये जो फोर्स होता है वो होता है वैन डर वाल्स फोर्स. वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. इन द अल्केन्स the intermolecular means between the molecules, intermolecular force of attraction is, which is that van der Waals force of attraction. okay, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता, जैसा कि वाटर मॉलिक्यूल है. अब अगर मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, देखो समझो मेरे पास है वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर में ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इट. ठीक है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है मेरे पास, उसमें ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा शिफ्ट होगी ऑक्सीजन की तरफ, तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन ऑफ अदर वाटर मॉलिक्यूल. सो देयर इज अ स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसलिए हम वाटर को बॉईल करने के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड लगते हैं. ठीक है, सो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, वाटर. बट हियर the attraction between the molecules, intermolecular attraction between the molecules in the case of alkanes is very low. okay, so their melting point and boiling points are also low. ठीक है, boiling point उनके कैसे होते हैं, low, क्योंकि आप easily separate out कर सकते हो molecules को, because the attraction is very low. okay, so this is what important point, the intermolecular force of attraction between them is weak van der Waals force of attraction. Write down that point. second point, फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखो, the intermolecular force of attraction between non-polar molecules are the intermolecular force of attraction between the molecules is van der Waals force of attraction. okay, note down this point, very important. okay, ओके, अब van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दोस्तों, अब ये van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग किस में होता है और वीक किस में होता है. अब अल्केन्स के आपको पता है दो टाइप्स है, एक है स्ट्रेट चेन अल्केन और दूसरा है ब्रांच चेन अल्केन. ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक अल्केन निकालता हूँ. देखो, एक मैं अल्केन लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3. okay, this is what pentane, normal pentane, straight chain alkane, and pentane you can say. okay, now this, consider this alkane CH3 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 CH3. now consider these two molecules, it is called neopentane, or what is the IPC name, 2,2 dimethyl propane. okay, in IPC nomenclature we select longest carbon continuous chain. okay, you know the rules. this is the N-pentane. अब देखो कौन से मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा है. now it is having large surface area, this is called large surface area. और यहां पे स्मॉल सरफेस एरिया. स्मॉल सरफेस एरिया है और क्राउडिंग भी है बहुत. ठीक है, और ये स्ट्रेट चेन अल्केन है. ओके, नोट डाउन दिस पॉइंट दैट these alkanes, though they have same molecular formula, but they have difference in the surface area.
their molecular formula is same. What is the molecular formula? C5H12. Okay, 3 plus 2 5 7 9 plus 3 12. C5H12, 3 into 4 that is 12. 5 carbon atoms and 12 हाइड्रोजन एटम्स, राइट. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में है? सरफेस एरिया में. सो बोथ मॉलिक्यूल्स दे हैव डिफरेंट सरफेस एरिया. ओके, अब ये देखो, समझो मेरे पास है एन पेंटेन, तो वो लिक्विड स्टेट में समझो, ठीक है. तो एन पेंटेन जो लिक्विड स्टेट में है, दैट एन पेंटेन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका, ये याद रखो, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उतने वो मॉलिक्यूल्स. अब एक एन पेंटेन के हमने लिक्विड मॉलिक्यूल लिए, लिक्विड, ठीक है. तो बहुत सारे एन पेंटेन मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एक एन पेंटेन मॉलिक्यूल दूसरे एन पेंटेन मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, तो उनमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. सो वैन डर वाल्स फोर्स इज हाई इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि स्ट्रेट चेन है वो. ओके, बाइंड हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे देखो, एक मॉलिक्यूल है मेरा नियोपेंटेन का, दूसरा नियोपेंटेन का मॉलिक्यूल, तीसरा नियोपेंटेन का मॉलिक्यूल. अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, एक तो इनका सरफेस एरिया शॉर्ट है, स्मॉल है, और क्राउडिंग भी बहुत, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, थोड़े रिपेल करते हैं, इसलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो आप इजीली उनको क्या कर सकते हो, बॉइल कर सकते हो. अगर इनमें अब एक एन पेंटेन मॉलिक्यूल, दूसरा एन पेंटेन मॉलिक्यूल, तीसरा एन पेंटेन मॉलिक्यूल, ठीक है, उनमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होते हैं, ठीक है. सो द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting point and boiling point of straight chain alkane are greater than branched chain alkane. Okay, note down this. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट लिखना है. ये पहले डायग्राम निकालो, फिर सरफेस एरिया, फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज व्हाट ट्रेंड. अगर आपको डिफरेंट अल्केन्स दिए, तो आप उन अल्केन्स में ऑर्डर फॉलो कर सकते हो. आप स्ट्रेट चेन अल्केन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर उसके बाद ब्रांच्ड चेन का. और ब्रांच्ड चेन अल्केन में भी आपको पता है दो टाइप्स है, आइसो और नियो. नियो में ज्यादा ब्रांचिंग होती है, आइसो में कम ब्रांचिंग होती है, ठीक है. तो उसमें आइसो में ज्यादा सरफेस एरिया होगा. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन द केस ऑफ अल्केन्स, आइसोमेरिक अल्केन्स? राइट डाउन. The boiling point order of isomeric alkanes boiling point order of isomeric alkanes straight chain alkane greater than isoalkanes greater than neoalkanes. Remember this point. तो स्ट्रेट चेन के तो ज्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग large surface area, straightly they are arranged. Okay, carbon atoms are straightly arranged, so the molecules they are associated strongly by this van der Waals force of attraction. Okay, and in the branched chain, you know, there are two types of alkanes, isoalkanes and neoalkanes. So in the neoalkane there is a more branching as compared to the isoalkane, so isoalkane will have higher boiling point than neoalkanes. So this order you should remember. Okay, for the isomeric alkane, अब देखो ये एन पेंटेन है, मैं यहाँ पे लिखता हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर. देखो, आप भी लिख के लो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर. ग्रेटर देन CH3 CH CH3 CH2 CH3. देखो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है, इससे इसका ज्यादा है और इससे इसका ज्यादा है, ठीक है. सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर विल बी एन पेंटेन विल बी हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दिस व्हाट आइसोपेंटेन
which is having higher boiling point than neopentane. So this is N-pentane, आइसोपेंटेन. तो आपको इस पॉइंट पे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ठीक है. N-pentane, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन. नोट डाउन दिस एग्जांपल. Okay, so in this way you can remember the boiling point. अब ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स, ठीक है. आफ्टर दैट वी विल सी नाउ द फिजिकल स्टेट, solid state, liquid state and gaseous state. Which alkanes are in solid state, which alkanes are in liquid state and which alkanes are in gaseous state, ठीक है. अब अभी देखा हमने, जितने ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना उनका एसोसिएशन ज्यादा होगा और उतना उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो फिजिकल स्टेट भी वैसी होगी. अब जो फर्स्ट 4 अल्केन्स है दोस्तों, देखो फिजिकल स्टेट. What about the physical state? Next property is about physical state. Physical state. Okay. So write down here. First 4 alkanes are gases. First 4 alkanes are gases. Next 13, okay, means C5 to C17. Next 13 are liquids and higher ones are solids. This is also very important, greater than C17. Okay, so note down, this is also, this physical state also you must remember. Means C18 onwards, carbon number 18 onwards, the alkanes are in solid state. After that we'll see their color and odor. What is the color of the alkanes and what is the odor of the alkanes? Okay, now about the color and odor. These alkanes are colorless and they are odorless. Remember this point also, they are colorless and odorless, whether they are solid, liquid or gas. What about the color and odor? Color and odor in smell, they are colorless and odorless. Okay, so these physical properties we have discussed, friends. Note down this point also.